Hello student. So today we are going to discuss about the new topic that is emotional intelligence. Okay. Emotional intelligence discuss करने से पहले I am giving you the few examples so that you can easily grasp the content and understand the concept. Okay. So here I am giving you the first example that is related to the self awareness. Okay. First we will learn about the or we can understand it through the example. Okay. And then we will move to the concept. Clear? So first example is for emotional intelligence. There is a first example is related to self awareness. Okay. What is self awareness? आत्म जागरूकता बेसिकली, राइट. व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? सो अगर मैं सेल्फ अवेयरनेस की बात करूं तो सेल्फ अवेयरनेस है, आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, है ना. सो तारे जमीन पे जो मूवी आपने देखी है उसमें जो कैरेक्टर है राम शंकर निकुंभ, जो ये कैरेक्टर को प्ले किया है आमिर खान ने, राइट. सो ही अंडरस्टैंड हिज ओन इमोशन डीपली. ओके. he understand his own emotion deeply and realize how strongly he feels about the children's education and creativity. Clear? So that's why this awareness help him empathize with Isan, वो जो बच्चा रहता है ईशान, right? And this Isan is the dyslexic child, right? So Nikumb, that is Amir Khan, known that traditional method जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और किस चीज़ से आप डीपली जुड़े हुए हैं और किस तरीके से काम कर सकते हैं. सो यू आर एबल टू सर्व द सोसाइटी इन अ बेटर वे. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ. इफ आई नो दैट आई कैन मोटिवेट समवन वेरी इजली, राइट, विद द फैक्ट, with the few good things, right, with the real life examples, so I can serve myself to the society for the motivational content and for the teaching. Clear? So this is called the self awareness. If you have your self awareness, you are known about yourself that this quality is for the district collector, this quality is for the IS services, right? So if you find out that this quality you have, that you are easily can crack the interview and the exam also. Clear? Now let's move to the next topic. Next, yes, that particular topic, or we can say that it is a types of emotional and intelligence, right, or value of an emotional intelligence, or ethical value, we can say that. So second is self regulation. Self regulation means आत्म नियंत्रण, right. व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन? अगर आपने एस्पिरेंट सीरीज देखी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो है एस्पिरेंट्स, राइट, बहुत पॉपुलर भी हुई थी. सो उसमें एक कैरेक्टर था अभिलाष शर्मा, दैट इज द आईएएस एस्पिरेंट जो था, राइट. सो अभिलाष शर्मा को अगर आप देखो तो ही फेसेस अ मल्टीपल फेलियर्स, राइट. ही फेसेस अ मल्टीपल फेलियर्स बट डजेंट रिएक्ट इमोशनली इन एनी सिचुएशन, राइट. वो उसका ब्रेकअप हो, वो उसका जेलेसी हो, या वो उसका फ्रस्ट्रेशन हो, राइट, उसका स्ट्रेस हो, ही, right. So his ability to regulate his emotion help him stay focused, committed, and ultimately succeed. Clear? Now let's move to the next example. Next example is motivation. मोटिवेशन का अगर मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो दैट इज वन मूवी, चक दे इंडिया, राइट. So Chak De India is the movie, and there is a one character that is called Kabir Khan, right? This Kabir Khan character is played by Shah Rukh Khan, right? So despite facing a public humiliation and personal failure, okay, public humiliation, personal failure, but he motivates himself to coach the women team, okay, women hockey team, and win the World Cup. So how he play his role? His internal motivation to redeem his name, okay, and do the justice to the sports, keep his driven. Classic example for the intrinsic motivation, राइट. इंट्रेंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक. देखो इंट्रेंसिक अगर मैं कह रही हूँ इंट्रेंसिक मोटिवेशन, तो वो आपके अंदर से होनी चाहिए. इफ यू आर एबल टू नो योर सेल्फ वर्थ, यू आर नो अबाउट योर सेल्फ, यू हैव अ सेल्फ रेगुलेशन, यू हैव अ सेल्फ अवेयरनेस, सो दिस इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो है वो हमेशा आपके साथ ताउम्र, पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी. ठीक है.
एक्सटर्नल या एक्सट्रोशन क्या होता है? वो जो हम बाहर से मोटिवेट होते हैं किसी की बातों को सुन के, राइट? कोई वीडियो देख के, कहीं कोई कोट्स पढ़ के जो हो गया वो बाहर, वो कुछ समय के लिए होता है, फिर वो खत्म हो जाता है। व्हेन वी फेस द बिग सिचुएशन, बिग वर्स्ट सिचुएशन, इन दिस केस उस जगह पे एक्सटर्नल मोटिवेशन के जितने भी सोर्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। बट इफ यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ वर्थ, यू आर नो अबाउट योर सेल्फ अवेयरनेस, राइट? तो इस केस में जो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है? वो आपको कभी भी बैठने या झुकने नहीं देगा, कंटिन्यूसली आप काम करते रहोगे, ठीक है? वो कैसी भी सिचुएशन हो, आपका सेल्फ ह्यूमिलेशन हुआ हो, पब्लिक ह्यूमिलेशन हुआ हो, एनीथिंग, राइट? तो वो उससे आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एम्पैथी। अभी तक हम लोगों ने जब भी इथिक्स शुरू किए, सो हमने कंटिन्यूसली इथिक्स के एम्पैथी के बारे में पढ़ा है, ठीक है? सो अगर एम्पैथी की मैं बेस्ट एग्जांपल आपको प्रेजेंट करूं तो देयर इज अ वेरी फेमस मूवी दैट इज कॉल्ड मुन्ना भाई एमबीबीएस, है ना? उसमें जो मुन्ना का कैरेक्टर है विच प्लेड बाय संजय दत्त, राइट, ही कनेक्ट्स विद द पेशेंट, राइट, ही कनेक्ट्स विद द पेशेंट इमोशनली, listen to them and treat them, right, treats them with humanity. Clear? He treats them with the humanity to empower the hurt child like Isan, and his self-awareness drive him to take a stand for that kind of self humiliation हुआ हो, public humiliation हुआ हो, anything, right? तो वो उससे आ जाएगा। Let's move to the next topic, that is empathy. अभी तक हम लोगों ने जब भी इथिक्स शुरू किए, सो हमने कंटिन्यूसली इथिक्स के एम्पैथी के बारे में पढ़ा है, ठीक है? सो अगर एम्पैथी की मैं बेस्ट एग्जांपल आपको प्रेजेंट करूं तो देयर इज अ वेरी फेमस मूवी दैट इज कॉल्ड मुन्ना भाई एमबीबीएस, है ना? उसमें जो मुन्ना का कैरेक्टर है विच प्लेड बाय संजय दत्त, राइट, ही कनेक्ट्स विद द पेशेंट, राइट, ही कनेक्ट्स विद द पेशेंट इमोशनली, लिसन टू देम एंड ट्रीट देम, राइट, ट्रीट्स देम विथ ह्यूमैनिटी। Clear? He treats them with their humanity. So even when doctors fail to do clinically, right, उस जगह पे इमोशनली उन्होंने काफी लोगों को ठीक कर दिए। So this Munna's ability to understand others' pain, show the emotional depth and strong empathetic skills. तो कुछ सिचुएशन में हमारा IQ जो है वो कम हो जाता है EI के सामने, राइट? सो EI को हम कैसे मेजर करते हैं? EI को हम मेजर करते हैं EQ से, राइट? अभी हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, बट यहाँ पास मैं ये एग्जांपल्स आपको इसलिए पहले देना चाह रही हूँ सो दैट कि आप जब मैं पढ़ाना शुरू करूँ और मैं ये वर्ड्स बोलूँ तो आपको समझ आए, आप रिलेट कर पाओ उस एग्जाम्पल के साथ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सोशल स्किल। सोशल स्किल भी होना बहुत जरूरी है, राइट? सोशल स्किल मीन्स सामाजिक कौशल आपके अंदर कितनी है। सामाजिक कौशल का अगर मैं बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो पंचायत की सीरीज आपने देखी है, राइट? पंचायत पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है। सो पंचायत की सीरीज आपने देखी है और उसमें एक कैरेक्टर है अभिषेक त्रिपाठी जिसका रोल प्ले किया है जितेंद्र कुमार ने। सो पंचायत की सीरीज में जो अभिषेक त्रिपाठी है वो किस तरीके से एज अ पंचायत सेक्रेटरी होते हुए ही बिल्ड्स द रिलेशनशिप विद द विलेजर्स, ओके, एंड manage local disputes and communicate effectively with the stakeholder despite the cultural difference. Even he can also used his EQ, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस को भी उसने काफ़ी अच्छी जगह यूज़ किया था। एक बेस्ट अगर मैं एग्जांपल आपको प्रेजेंट करूं तो जब वो एक बूढ़ी माता आती है उस सीरीज़ में घर के लिए, घर अलॉट करवाने के लिए, उस केस में वो इम्पैथेटिक है टूवर्ड्स दिस ओल्ड लेडी, बट इसके साथ ही उसने अपना EI भी यूज़ करके, इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो जाकर उसका इन्वेस्टिगेशन करता है कि रियली सेज नीड दिस हाउस और नॉट, ठीक है? रेस्ट ऑफ द पार्ट इज डिफरेंट कि वहाँ झूठ बोला गया या वो कहानियाँ बना के झोपड़ी वाले घर में रहते, दैट्स द डिफरेंट स्टोरी। बट अगर हम पर्टिकुलर अभिषेक की बात करें, अभिषेक त्रिपाठी की, तो उसने इमोशनल इंटेलिजेंस भी दिखाया, वो इम्पैथेटिक भी था उस ओल्ड लेडी के साथ, प्लस वो बार बार उसे इम्पैथी भी शो कर रहा था जब भी वो पूछ रही थी कि आई थिंक देयर इज अ वन डायलॉग विच जो बहुत ही फेमस हुआ था, सचिव जी हो जाएगा ना, लाइक इस तरीके से, ठीक है? उस केस में वो बार बार उसको दिलासा देता था कि हाँ हो जाएगा, और वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था कि यस शी इज रियली नीड दिस हाउस एंड नॉट। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ट एग्जाम्पल, ओके? और सोशल स्किल्स के भी आपको एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल इस कैरेक्टर के थ्रू मिलते हैं। क्लियर?
अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? अभी तक हमने उसके वैल्यूज़ के बारे में बात की, इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, किधर किधर यूज़ कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज़ द भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? देखिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये आपके अंदर की वो क्षमता है जिससे, या हमारे अंदर की वो क्षमता है जिससे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं। ठीक है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, अभी हम किस इमोशन से फेस कर रहे हैं। ठीक है, कल हमारे अंदर कौन सा इमोशन था, या बेसिकली बेस्ट एग्जांपल इन अ वुमेन, आपके जो साइकिल्स होते हैं उसमें आपका इमोशन किस तरीके से अप डाउन होता है। ठीक है, या फिर कोई आपके अकॉर्डिंग बातें ना करे। फॉर एवरी वन, आई एम नॉट इंडिकेटिंग ओनली वुमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरी वन, दैट जब आपके मन का नहीं होता तब आपका इमोशन कैसे होता है, आपकी भावनाएं कैसी होती है। ठीक है, जब आपके बारे में कोई गलत बातें कहता है तब आपकी भावना कैसी होती है, या जब आपकी कोई प्रशंसा करता है, व्हेन समबडी प्रेज्ड यू, तब आपकी भावना कैसी होती है। तो उस भावनाओं को समझना, ठीक है, साथ ही उसे नियंत्रित करना और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, व्यक्त करना, राइट। साथ ही साथ दूसरों की भावनाओं को भी पहचान कर उसके अनुसार ही व्यवहार करना इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। क्लियर? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? अपनी भावनाओं को हम किस तरीके से समझते हैं, ठीक है, हम अपनी भावनाओं को किस तरीके से नियंत्रित करते हैं और किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। साथ ही हम दूसरे की भावनाओं को समझकर उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर? अगर मेन सेंस ऑफ राइटिंग के लिए हमें इसके डेफिनेशन लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड एक्सप्रेस वंस इमोशन, राइट, and also recognize and influence the emotion of others. Clear? So this is called the emotional intelligence. Clear हुआ emotional intelligence क्या है? चलिए आगे। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके एग्जांपल ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ, राइट। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, राइट। ये सारे एग्जांपल्स अभी मैंने आपको दिए थे, इन्हीं को देंगे, इन्हीं को अब डिटेल में हम और जानेंगे। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। सो कंपोनेंट्स और क्या हो सकते हैं? सेल्फ अवेयरनेस, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, आमिर खान तारे जमीन पे मूवी वाला, राइट। सेल्फ रेगुलेशन, किस तरीके से एस्पिरेंट सीरीज का जो IAS एस्पिरेंट होता है वो अपने आप को रेगुलेट करता है। थर्ड इज मोटिवेशन, मैंने अभी एग्जांपल दिए थे मोटिवेशन का आपको। एम्पैथी एंड द लास्ट वन इज सोशल स्किल। ये सबके एग्जांपल दिए, बट अब इसको डिटेल में समझते हैं क्योंकि हमें मेन सेंस ऑफ राइटिंग भी करनी है। ठीक है, सो अगर मैं सेल्फ अवेयरनेस की बात करूं तो क्या है ये नोइंग वंस इमोशन एंड देयर इम्पैक्ट, मतलब अपनी भावनाओं और उनके प्रभाव को समझना। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ रेगुलेशन की बात करूं तो मैनेजिंग इम्पल्सेस एंड इंटेलिजेंस। ओके, दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। सो कंपोनेंट्स और क्या हो सकते हैं? सेल्फ अवेयरनेस, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, आमिर खान तारे जमीन पे मूवी वाला, राइट। सेल्फ रेगुलेशन, किस तरीके से एस्पिरेंट सीरीज का जो IAS एस्पिरेंट होता है वो अपने आप को रेगुलेट करता है। थर्ड इज मोटिवेशन, मैंने अभी एग्जांपल दिए थे मोटिवेशन का आपको। एम्पैथी एंड द लास्ट वन इज सोशल स्किल। ये सबके एग्जांपल दिए, बट अब इसको डिटेल में समझते हैं क्योंकि हमें मेन सेंस ऑफ राइटिंग भी करनी है। ठीक है, सो अगर मैं सेल्फ अवेयरनेस की बात करूं तो क्या है ये नोइंग वंस इमोशन एंड देयर इम्पैक्ट, मतलब अपनी भावनाओं और उनके प्रभाव को समझना। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ रेगुलेशन की बात करूं तो मैनेजिंग इम्पल्सेस एंड इमोशन रिएक्शन, जैसे कि एस्पिरेंट सीरीज में जो IAS एस्पिरेंट की तैयारी कर रहा होता है बंदा, उसने किए हैं। ठीक है, थर्ड इज मोटिवेशन, मीन्स इनर ड्राइव टू अचीव द गोल। इनर ड्राइव में एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। इनर ड्राइव टू अचीव द गोल में उसमें बहुत अच्छा एस्पिरेंट सीरीज में एक संदीप भैया रहते हैं, राइट। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा ये रोल प्ले किया था। अभिलाष नाम था IAS एस्पिरेंट का, मैं नाम बोल रही हूँ, सॉरी। तो उसको किस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया था। ठीक है, केवल उन्होंने अपनी बातों से या रियल फैक्ट बता के ही नहीं, उसको इमोशनली भी रियल लाइफ की सिचुएशन को दिखाते हुए भी मोटिवेट किया था। ठीक है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर पा रहा था। सो मोटिवेशन का वहाँ इनर ड्राइव टू अचीव द गोल मीन्स लक्ष्य प्राप्ति की आंतरिक प्रेरणा उसको जो मिल रही थी। मोटिवेशन का रोल किसने प्ले किया था? संदीप भैया ने किया था। तो दिस वे आप समझ सकते हो कि मोटिवेशन भी एक कंपोनेंट है हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स
टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन, टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन. बेस्ट एग्जाम्पल पंचायत सीरीज, अभिषेक त्रिपाठी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट है सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स मीन्स मैनेजिंग द रिलेशनशिप इफेक्टिवली, right? Managing the relationship effectively. Again, I am giving you the example of the Abhishek Tripathi from the Panchayat series. Okay, why I am giving all this example? Right, ये example इसलिए क्योंकि ये हम अपने daily life में देख रहे हैं, right? और according to the trend हम ये सब में ज़्यादा involved हो रहे हैं. बातें भी यही चलती हैं हम लोगों के बीच में कभी कभी, तो हम इससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और हम समझ पाएंगे अपनी पढ़ाई को भी. ओके, बहुत ही प्रोफेशनल एग्जाम्पल अगर जो हमें एग्जाम हॉल में लिखना हो, हम ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बट कुछ डिसेंट एग्जाम्पल भी हमें चाहिए होंगे इसको एक्सप्लेन करने के. ठीक है, आई विल गिव यू, डोंट वरी. पहले हम पढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस का सिविल सर्विसेज में. देखो, सबसे पहले तो ये हेल्प करेगा ऑफिसर्स को रिमेन काम ड्यूरिंग द क्राइसिस. कोई भी क्राइसिस हुआ उस टाइम में ऑफिसर को काम मोड में रहना बहुत ज़रूरी है. अगर ऑफिसर्स काम नहीं रहेंगे तो फिर वो हैंडल नहीं कर पाएंगे पब्लिक डीलिंग, राइट? तो फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है टू इनेबल्स बेटर पब्लिक इंटरेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. क्लियर? सो इनेबल बेटर पब्लिक इंटरेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये हो गया. थर्ड है बिल्ड ट्रस्ट अमॉन्ग द सिटीजन्स एंड कलीग्स. अपने सिटीजन से काम कैसे करवाएं, अपने कलीग से काम कैसे करवाएं, लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करें, मैनेजर क्वालिटी कैसे डेवलप करें, इन सारी चीज़ों के लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है. क्लियर? नेक्स्ट, रिड्यूस स्ट्रेस एंड बर्नआउट इन अ हाई प्रेशर इन्वायरमेंट. इमोशनल इंटेलिजेंस हमें इसलिए भी जरूरत पड़ेगी ताकि हम अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकें. ठीक है, साथ ही हम हाई प्रेशर में अपने आप को कंट्रोल कर सके. सो विदाउट नोइंग अबाउट आवरसेल्फ, विदाउट सेल्फ रेगुलेशन, विदाउट इमोशन, हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रिलेवेंट एग्जाम्पल, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि क्यों जरूरी है, किस तरीके से लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके अपने काम को अच्छे से हैंडल किया है. इसका ही मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगी. पहले एग्जाम्पल मैं दूंगी टी.एन. सेनन का. ओके, टी.एन. सेनन फॉर्मर सीईसी, राइट? उन्होंने क्या किया था, व्हाट ही हैज डन. टी.एन. सेनन ने हिज फर्मनेस इज enforcing the model code of conduct. Okay, along with his calm, emotional, stable approach, so high emotional intelligence, he faced criticism with grace and focused on electoral reform. ठीक है, इनकी बायोग्राफी भी पढ़ी हुई है टी.एन. सेनन की. अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म को हैंडल किया है इलेक्टोरल रिफॉर्म को एक्टिव कराने में. ठीक है, तो आप जब इसको इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, इसलिए मैंने इनका एग्जाम्पल दिया. ओके, नेक्स्ट आई.ए.एस. ऑफिसर इज आर्मस्ट्रॉन्ग पेम, मणिपुर में थे. ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग पेम. ही मोबिलाइज्ड द कम्युनिटी हेल्प एंड बिल्ड 100 किलोमीटर रोड without government needs or help, right? और without government fund also, फंड भी नहीं लिया था उन्होंने 100 किलोमीटर रोड को बनवाने में. So his ability to empathize with the people's need and inspire them reflects the social skills and self motivation. ठीक है, तो जो उनकी करुणा और प्रेरणादायक नेतृत्व थी, ठीक है, वो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करती है. ओके, नेक्स्ट मैं बताऊंगी 2023 में उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसके जो सीनियर रेलवे ऑफिसर्स थे उनके बारे में. सो दिस ऑफिसर इन्वॉल्व डिस्प्ले द काम अंडर chaos, okay, comforted victims, coordinated rescue effort and communicated with the transparency, showing the empathy and social intelligence. So इस जगह पर, इस कंडीशन में, इस क्राइसिस में अधिकारियों की जो संवेदनशीलता है, राइट, और जो संयम है, उस स्थिति को नियंत्रित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. और इस टाइम इस ऑफिसर ने इसी तरीके की भूमिका को निभा के चीज़ों को आगे किया है.
नेक्स्ट मैं बताऊँ, जो हमारे साथ काम करते हैं, राइट, सबऑर्डिनेट जो होते हैं हमारे, सबऑर्डिनेट का जो मिसकंडक्ट मैनेजमेंट होता है समटाइम, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। जब आप काम कर रहे हैं और आपके काम के अकॉर्डिंग आपके सबऑर्डिनेट्स काम नहीं कर रहे हैं, उस केस में आप उसको कैसे मैनेज करोगे। सो इफ़ यू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, यू आर एबल टू मैनेज द या मिसकंडक्ट मैनेजमेंट। कैसे? अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट reprimands a clerk calmly and listen to his side before taking action. Clear? Showing the emotional regulation and fairness instead of reacting in anger. बेस्ट एग्जाम्पल मैं अपने हस्बैंड का देना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक लेडी थी 50 ईयर्स ओल्ड, राइट, रिटायर होने वाली थी अब वो, और उनका जो करप्शन वाला गेम था, मतलब सी नॉट थिंक अ लिटिल बीट अबाउट एनीथिंग, राइट। अगर उससे 50 रुपए भी मिल रहे हैं घूस में किसी पेपर को साइन कराने के लिए, सो सी कैन टेक दैट 50 रुपीज़ ऑल्सो, राइट। बहुत लोगों के कंप्लेंट्स गए, सो जब मेरे हस्बैंड के पास ये कंप्लेंट्स गए, राइट, तो उन्होंने कैसे इसको हैंडल किया, उन्होंने उसको बुला के पहले उससे कामली बात करी, वो क्यों ऐसा कर रही है, या वो उसने किया है या नहीं किया, ये सारे फॉल्स उसके खिलाफ ये चीज़ें आई हैं। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, पहले उससे बात करी, फिर ऑफिस में इन्वेस्टिगेट किया उसके बारे में, फिर उसको प्यार से समझाया, फिर भी वो नहीं मानी, तो फिर उसके लिए उसको सस्पेंड किया गया फॉर 1 वीक, राइट, कि आप सुधर जाओ, इस तरीके के काम मत करो। फिर भी वो अगर नहीं मानती है तो देन वी कैन रेस्ट्रिकेट यू फ्रॉम द ऑफिस, राइट। सो रेस्ट्रिकेट करने पे भी उसके अंदर डर नहीं था, क्योंकि बस 1-2 साल में रिटायर होने वाली थी। सो इन दिस केस फिर उसको कैसे समझाया गया, फिर उसको बताया गया कि आफ्टर द रिटायरमेंट, इफ़ यू वांट योर रिटायरमेंट मनी, इन दिस केस यू कैन डू द कंडक्ट इन अ वेरी गुड मैनर, अदरवाइज वी कैन पॉज योर रिटायरमेंट मनी ऑल्सो। सी, दिस इज द वे यू कैन कम्युनिकेट टू योर सबऑर्डिनेट्स, राइट। बट ये आप तभी कर पाओगे व्हेन यू आर एबल टू काम इन एवरी सिचुएशन। और ये कामनेस कब आएगी, ये सेल्फ वर्थनेस, ये सेल्फ रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें कब आएगी, व्हेन यू नो अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हेन यू आर एबल टू बिल्ड द इमोशनल इंटेलिजेंस इन योर सेल्फ। क्लियर? राइट। सो अब आगे बढ़े, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे कि एग्जाम्पल से पहले मैंने बोला कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए तो कैसे विकसित करें, कैसे डेवलप करें? फर्स्ट, प्रैक्टिस द माइंडफुलनेस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है ना, खुद के बारे में जानना। वो कैसे पता चलेगा? जब आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, जब आपको कोई कुछ सिखा रहा है, जब आपके बारे में कहीं कुछ बात हो रही है, तो उस चीज़ों को सुन के गुस्सा ना होके, बल्कि उस चीज़ों को सुनिए, समझिए और जानिए कि सच में ये दिक्कतें मेरे अंदर हैं। अगर आपके अंदर है तो उस चीज़ को ठीक करिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ रिफ्लेक्शन। और प्रैक्टिस द माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मीन्स डू द मेडिटेशन। दिस इज द वेरी लो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट थिंग्स, राइट, माइंडफुलनेस। Otherwise you can take other helps to calm your mind, right? Next है आपका seek the feedback and learn from the criticism। वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बोली, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन में आपको काम करेगी। थर्ड आप कर सकते हो डेवलप द एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग स्टार्ट कर दीजिए, बजाय रिएक्ट करने के आप एक्टिव लिसनिंग शुरू करिए। इसके साथ ही आप एम्पैथी करिए, एम्पैथेटिक हो जाइए टुवर्ड्स टू एनीवन। जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है उसके टुवर्ड्स भी, और जो आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है उसके टुवर्ड्स भी, उसकी बातों को सुनिए, उसके लिए एम्पैथेटिक होइए। अगर वो क्रिटिसाइज आपको कर रहा है तो उसको थैंक यू बताइए कि उसने आपके अंदर की कमियां को बताया है, राइट। आपके अंदर की जो कमी है उसको उसने बताया है थ्रू द क्रिटिसिज्म। यू कैन एक्सेप्ट दैट एंड एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दैट पर्सन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं आप? ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम द इमोशनल इंटेलिजेंस रोल मॉडल्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए बेस्ट रोल मॉडल रहे हैं रतन टाटा, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू द जमशेदपुर, राइट नाउ आई एम लिविंग इन दिल्ली। बट से कैसे सीख सकते हो, ठीक है। वो जैसे जैसे कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने एम्पैथी शो किए थे वहाँ के लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए, ना कि एज अ मैनेजर को ही प्रमोट किया था, मैनेजरियल स्किल को अपने ऑफिस में बैठ के सारी चीज़ें देखे थे, बल्कि खुद ताज होटल जाके उन्होंने वहाँ के करेंट सिचुएशन को देखा था और वहाँ के एम्प्लॉय से बात भी करी थी, ठीक है। तो इट्स शोइंग द एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देयर कलीग्स, ओके, देयर एम्प्लॉय, एंड साथ ही उनका एक एम्पैथेटिक और एक लीडरशिप क्वालिटी विद IQ एंड EQ बोथ वहाँ दिखता है, ठीक है। सेम एग्जांपल मैं मोदी जी का भी देना चाहूँगी, जहाँ पर उन्होंने जब भी कहीं बाढ़ आई या ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ का रियल